خدا نہ خواستہ یا پریس بند کر دیے جائیں تو جب تک دنیا میں ایک بھی حافظ قرآن موجود ہے قرآن پاک موجود رہے گا، اس لیے کہ لوح دل کے اوپر لکھی جا رہی ہے یہ مقدس ترین کتاب۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ قانون کا کچھ اپنا مزاج ہوتا ہے، قانون کے اپنے تشخصات ہوتے ہیں، قانون کے اپنے مطالبات ہوتے ہیں، قانون کا اپنا ماحول ہوتا ہے۔ آج ایک انسان جب کوئی قانون بناتا ہے تو کل وہ قانون توڑ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ انسان آج کے ماحول کو تو دیکھتا ہے مگر کل کو نہیں دیکھتا ہے۔ انسان حال کے شامیانے میں بیٹھ کے قانون بناتا ہے مگر مستقبل اس کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہوتا۔ انسان اپنے لیے حسن و قبح کے مختلف جذبات رکھتا ہے، مختلف محسوسات رکھتا ہے۔ حسن و قبح اشیاء عقلی نہیں ہے ہمارے اعتبار سے مگر عقل انسانی اپنے اعتبار سے حسن و قبح کے کچھ معیارات رکھتی ہے جس کی بنیاد پر ایک جگہ قانون دوسری جگہ نافذ العمل نہیں ہو سکتا ہے، ایک معاشرے قانون دوسرا معاشرہ قبول نہیں کر سکتا ہے، ایک جگہ قانون دوسری جگہ رائج نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ایک قانون بنایا جاتا ہے کل وہ قانون توڑ دیا جاتا ہے، آج ایک قانون تراشا جاتا ہے کل اس قانون کو رد کیا جاتا ہے، آج ایک قانون کے لیے ہاتھ اٹھایا جاتا ہے کل دوسرا قانون اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ دنیا کے قوانین کا یہ مزاج ہے تو وہ قانون جو آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا کیا آج کے دور میں بھی نافذ العمل ہے؟ کیا آج کے دور میں بھی اس پہ عمل کیا جائے گا؟ کیا آج کے دور میں بھی اسے تسلیم کیا جائے گا؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جہاں آپ نے سوال کیا ہے وہیں سے آپ کے سوال کا جواب ملے گا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون کبھی بھی مختلف ادوار کے لیے مکمل رہنمائی فراہم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ انسان حال کو دیکھ رہا ہے مگر مستقبل کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ آنے والے زمانے کے بارے میں اندازہ تو کر سکتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ کوئی قطعی اور حقیقی ٹھوس قدریں نہیں پیش کر سکتا جس کی بنیاد پر ہر آنے والا قانون بدل جاتا ہے۔ مگر سنو، کلام الہی اس پروردگار عالم کا قانون ہے جس کی نگاہ قدرت کے سامنے ماضی حال مستقبل سب برابر ہیں، جو خالق حال و استقبال ہے۔ جب وہ کوئی قانون پیش کرے گا تو نہ حال مقابلے میں آ سکے گا نہ مستقبل اسے چیلنج کر سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا اپنے اس اعلان کے ساتھ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر تم اس کے بارے میں شک کر رہے ہو جو ہم نے اپنے حبیب کے اوپر نازل کیا ہے تو اس کی جیسی ایک صورت بنا لاؤ، اس کی جیسی ایک آیت بنا لاؤ۔ صورت اور آیت کے بلاغی اور فصاحتی نظام سے الگ ہٹ کر کے میں یاد کرنا چاہتا ہوں اس زمانے کا انسان بھی نہ بنا سکا تھا اور آج کے زمانے کا انسان بھی نہ بنا سکا۔ حالانکہ زبانوں کا مزاج بھی قوانین کے مزاج ہی کی طرح سے ہے۔ جو ارباب ماہرین السنہ ہیں، جو زبانوں کے واقف ہیں، وہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج جو زبان فصاحت و بلاغت کے نقطہ انتہا پر ہے، آج جو زبان ٹکسال کی زبان ہے، آج جو زبان سکہ رائج الوقت ہے، آج جو زبان انتہائی معیاری ہے، کل وہی زبان تاریخ بن جاتی ہے، میوزیم میں رکھی جاتی ہے، تاریخوں میں پڑھائی جاتی ہے اور اس کی جگہ پہ دوسری زبان جگہ لے لیتی ہے، دوسری زبان آ جاتی ہے۔ زبانوں میں ارتقاء کا عمل جاری ہے، اس لیے یہ عمل جاری ہے کہ نئے نئے مشاہدات ہیں، نئی نئی کیفیات ہیں، نئے نئے تقاضے ہیں، نئے نئے مطالبات ہیں۔ زندگی کا محدود دائرہ پھیل رہا ہے، وہ سطح بڑھ رہی ہیں۔ کل انسان اپنے کمرے میں زندگی گزارتا تھا اور آج اس نے اپنے کمرے میں پوری کائنات کو سمیٹ لیا ہے۔ انسان چاند پہ کمندیں ڈال رہا ہے، سورج کی شعاعوں کو گرفتار کر رہا ہے، زمان و مکان کی وسعتیں سمٹ رہی ہیں۔ اس لیے انسانوں کی اپنی فکری وسعت کے ساتھ ساتھ لسانی وسعت ضروری ہے۔ نئی اصطلاحات ایجاد ہو رہی ہیں، نیا طرز زندگی ایجاد ہو رہا ہے، اس لیے زبان کا دائرہ بھی بدل رہا ہے۔ دنیا کی مختلف زبانیں ایک دوسرے سے مل رہی ہیں، اس لیے اسالیب اخذ کیے جا رہے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں غالب کی اردو کسی زبانے میں بہت معیاری اردو رہی ہوگی لیکن آج وہ اردو محض تاریخ بن چکی ہے۔ میر کا لب و لہجہ بڑا معیاری لب و لہجہ تھا، میر کو تو مستقبل کا شاعر کہا جاتا ہے لیکن آج وہی میر ٹک سا ہو کر کے رہ گیا ہے۔ سرہانے میر کے آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ شیکسپیئر کی انگلش اپنے جذباتی انداز خطاب کی بنیاد پر دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی تھی مگر آج وہ صرف میوزیم کی زینت بنی ہوئی ہے۔ ورڈسورتھ کا انداز فکر دنیا کو مخاطب کرنے والا تھا مگر آج وہ مفکر نہیں رہ گیا ہے۔ فلاطونس کا انداز فکر دنیا کے لیے بے پناہ عظیم تھا مگر آج وہ محض تاریخ ہے۔ ارسطو کا نظام اخلاق کبھی دنیا کو انقلاب دینے والا تھا مگر آج وہ تاریخ کی زینت بن چکا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زبانوں کا مزاج بدلتا رہتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جب دنیا کی ہر زبان بدلی ہے تو پھر قرآن عظیم کی زبان میں بھی تبدیلی آئی ہوگی نا، یعنی عربی میں تبدیلی آئی ہوگی نا۔ چھوٹی چھوٹی زبانوں کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے، محدود زبانوں کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے مگر قرآن کے واسطے سے اور اسلام کے واسطے سے جو دنیا کے 90 کروڑ مسلمانوں کی زبان ہے اور ان کے علاوہ لاکھوں اور کروڑوں غیر مسلموں کی زبان ہے، کیا اس کے اندر تبدیلی نہ آئی ہوگی؟ میں کہتا ہوں قرآن پاک نے آج سے 1400 سال پہلے دعویٰ کیا تھا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، تم اگر شک کر رہے ہو جو ہم نے نازل کیا تو اس کے جیسی ایک صورت
बना लाओ, उस वक्त का अरब न बना लाया था, आज का आजमी बना लाता, मगर न उस जमाने में जवाब दिया जा सका, न आज के जमाने में जवाब दिया जा सकता है। इसलिए कि उन जबानों में तरमीम होती है, उन जबानों में इर्तिका होता है, उन जबानों में बदलने वाली कैफियतें होती हैं जो इंसानों की बनाई होती हैं। कुरान खुदा का नाजिल किया हुआ है, उसका उसलूब हर दौर में सबसे बाला है, उसका अंदाज हर दौर में सबसे मोहतरम है, उसकी फसाहत व बलागत हर दौर में सबसे मयारी है। एक ऐसा इंसान जिसे ताहा हुसैन कहते हैं, जिसके बहुत से अफकार से हमको इख्तिलाफ है, जिस पे यकीनन इश्तराकियत का गलबा था, जिसने मगरबी अफकार से बहुत कुछ अख्ज़ किया था, लेकिन वो भी कुरान पाक की बारगाह में ये खिराज एहतराम पेश करने पे मजबूर हो गया कि दुनिया की हर जुबान के लिए हम दो उसलूब रखते हैं। एक उसलूब को उसलूब कदीम कहते हैं, एक उसलूब को उसलूब जदीद कहते हैं, मगर कुरान के सिलसिले में हमें मानना पड़ेगा कि उसके तीन, अरबी के सिलसिले में मानना पड़ेगा उसके तीन उसलूब हैं, उसलूब कदीम और उसलूब जदीद और उसलूबुल कुरान। इसलिए कि उसलूब कुरान हर दौर में जदीद है, हर दौर में अजीम है, हर दौर में मेयार के आला तरीन मंजिल पे फाइज है, हर दौर में अजमत इंसानी के नुक्ता इंतहा पर है, किसी दौर में उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। मुझे बताओ कि जब कुरान की जुबान का ये आलम है तो कुरान के पैगाम का क्या आलम होगा, कुरान के आइन का क्या आलम होगा, कुरान के दस्तूर का क्या आलम होगा। कुरान कानून जिंदगी है और आईने हयात है, कुरान ज़ाब्ते अमल है, कुरान तमाम इंसानों के लिए यकसा मुमकिन अमल है, हर दौर के लिए और हर असर के लिए है। मैं चंद और मिसालें दे दूं। कुरान तो आइन और पैगाम की बात है ना, आइन और पैगाम की बात आएगी तो मैं भी उसकी मिसालें दूंगा। आओ मैं कुरान पाक की उन कैफियत का जायजा लूं जो आफाक व अनफुस से मुतल्लिक हैं। कुरान पाक ने जो फैसले कर दिए हैं, असर जदीद न उसकी तरदीद कर सकता है और न तरदीद की जुर्रत कर सकता है। आज 1400 साल के बाद इंसान कह रहा है ये जमीन हमेशा ऐसी नहीं रही, ये जमीन सूरज से टूट टूट के जुदा हुई है, ये जमीन कभी एक आतिश सयाल की तरह से थी, एक सुर्ख गोला थी जो जमीन थी, और उसके बाद हजारहा साल में सर्द होती रही, करोड़हा साल में रुईदगी पैदा हुई, और उसके बाद सतह आप पे जिंदगी का पहला अमीमा नमूदार हुआ, और उसके बाद फिर जहामानों का वजूद हुआ, फिर इंसानों का वजूद हुआ, इर्तिका के नजरिए के एतबार से जो भी पेश कर रहे हो। लेकिन जमीन हमेशा ऐसी ही नहीं थी, ये इनका अपना नजरिया है और आज ये साबित शुदा हकीकत समझा जाता है। मगर कुरान अजीम इरशाद फरमा रहा है आज से 1400 साल पहले, अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्नस समावाति वल अर्द कानता रतकन फफतकनाहुमा, क्या वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया वो ये नहीं देख रहे हैं कि ये पस्तियां और बुलंदियां मिली हुई थी जमीन और आसमान, और हमने उनको एक दूसरे से जुदा कर दिया। जमीन का सूरज से जुदा होने का नजरिया आज का नजरिया है, मगर मैं अर्ज करना चाहता हूं कुरान अजीम ने 1400 साल पहले ही उसका तस्करा किया है। जमीन हमेशा ही ऐसी नहीं थी, बल्कि ये एक शोले जवाला थी, एक अंगारे का गोला थी, उस पे इंसानी रिहाइश नामुमकिन थी। और उसके बाद ये कहते हैं इत्तेफाक का धमाका हुआ। ये साइंस का इत्तेफाक भी बड़ा अजीब है। अगर आप एक गिलास पानी जमीन पर डालें और कहें कि ये ऑस्ट्रेलिया का नक्शा बन गया है, उसका जोग्राफियाई नक्शा, उसका तबई नक्शा, उसका सियासी नक्शा, तो कोई अक्ल इसे तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हुई। इतने बड़े निजाम कायनात के बारे में ये इत्तेफाक का धमाका बोलते हैं। बहर कैफ इनके इत्तेफाक का धमाका हुआ और इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जमीन अचानक फट गई और उससे मुख्तलिफ बर्रे आज़म जुदा हुए और बीच में समंदर हायल हो गए। आज ये कहा जा रहा है कि ये नजरिया इंतशार बर्रे आज़म है। 1400 साल के बाद जिसे नजरिया इंतशार बर्रे आज़म कहा जा रहा है, 1400 साल और पहले कुरान अजीम ने इरशाद फरमाया था, कुरान अजीम ने वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया था कि परवरदिगार आलम ने उसके बाद जमीन को फाड़ दिया। वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा फअखरजा माहा व बरमराहा, बाद ज़ालिका की कैद बता रही है कि कभी जमीन फटी नहीं थी, कभी ये जमीन अलग नहीं हुई थी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कायनात के एंड के बारे में, कायनात की इंतहा के बारे में आज सैकड़ों नजरियात हैं। एक इस्लामी नजरिया है कि कायनात तमाम होगी, कायनात तबाह होगी, कायनात बर्बाद होगी, कयामत आएगी और दोबारा इंसानों को जिंदगी दी जाएगी। उसके बारे में आज की साइंस तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर निजाम अफलाक में फर्क आ जाए, निजाम सय्यारगाह में फर्क आ जाए, निजाम सबाबित में फर्क आ जाए तो कयामत आ सकती है। मिसाल के तौर पर चांद 2.5 लाख मील के फासले पर है, जब वहां से अपनी शुआएं डालता है तो समंदरों में मद्दोजर आ जाता है। अगर 2.5 लाख मील के फासले के बजाय वो 50,000 मील के फासले पे आए तो इतना बड़ा सैलाब आएगा कि जमीनें बह जाएगी, पहाड़ों का वजूद भी नहीं होगा और कायनात तबाह हो जाएगी। पता चला कि जमीन भी एक सैयारा है और चांद भी, दोनों का कुर्ब कायनात को तबाह कर सकता है। कुरान अज़ीम यही तो इरशाद फरमाता है, यौम नतवी समा कतई सिजिल कुतुब, कयामत उस रोज आएगी जब हम आसमान की बुलंदियों को तूमार मारे हुए कागज की तरह फेर देंगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, आज का जो भी साइंस मौका होता तो मैं इस तरह की हजारों मिसालें देता, लेकिन इसका मौका नहीं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आज जो साबित शुदा हकीकत है वो आज से 1400 साल
पहले पेश की गई, मगर उस जमाने का इंसान भी उससे मुतमईन है और आज का इंसान भी उससे मुतमईन है। जब साइंस के इन महसूसात और मुशाहदात की बुनियाद पर भी कुरान पाक की तरदीद नहीं बल्कि तायीद हो रही है, तो कुरान पाक जब कानून जिंदगी है तो कानून में उसका मकाम कितना बुलंद होगा। इस एतबार से मैं चंद वजाहतें करना चाहूंगा। देखो, कवानीन वक्त के तकाजे की बुनियाद पर होते हैं, कवानीन माहौल की बुनियाद पर होते हैं। जब इंसानी अक़दार और शरफ इंसानी का कोई वाज़ेह तसव्वुर नहीं था तो इंसान काला भी था और गोरा भी था, इंसान एशियाई भी था और अफ्रीकी भी था, इंसान मगरबी भी था और मशरिकी भी था, इंसान तबकों में बटा हुआ था, इंसान इलाकों में बटा हुआ था, इंसान मुख्तलिफ रंगों में बटा हुआ था, इंसान नस्लों में बटा हुआ था। जोग्राफियाई तक़सीमों ने इंसान की जिंदगी को मुख्तलिफ खानों में बांट रखा था, इसलिए कि इंसान मिल नहीं सकता था, इंसान गुलाम बनाया जाता था, इंसान बेचा जाता था, इंसान खरीदा जाता था। आज ह्यूमन राइट्स की बुनियाद पर, इंसानी हुकूक की बुनियाद पर दुनिया के मुफक्किरीन कवानीन बना रहे हैं कि शरफ इंसानी का एहतराम किया जाए, इंसान के वजूद का एहतराम किया जाए, इंसान की इरफादियत का एहतराम किया जाए, इंसान की इज्तिमाइयत का एहतराम किया जाए, इंसान की जाती जिंदगी का एहतराम किया जाए, इंसान की अजमत का एहतराम किया जाए, रंगो नस्ल के इम्तियाजात मिटाए जाएं, जोग्राफियाई तकसीमों को खत्म किया जाए। आज 1400 साल के बाद जिस कानून की जरूरत पेश आ रही है, 1400 साल पहले ये सारे कवानीन कुरान पाक के अंदर मौजूद हैं। बताओ मौजूद हैं या नहीं है? पता चला जमाना जिन कवानीन का आज मुतालबा कर रहा है वो कवानीन पहले से दे दिए गए, इसलिए कि उन कवानीन का नाजिल करने वाला खुदा ये जानता था कि ऐसे हालात पेश आएंगे जहां इन कवानीन की जरूरत पेश आएगी। बल्कि रसूल पाक के इनकलाब का मकसद ये था कि पहले ही से ज़हन इंसानी को इसके लिए तैयार किया जाए। और आज दुनिया में जो भी हो रहा है वो सदाए बाज़गश्त है उस मुकद्दस तरीन कानून की, उस मुकद्दस तरीन आइन की। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज इंसानी हुकूक से हट करके इंसान की आइली जिंदगी के बारे में, इंसान की कानूनी जिंदगी के बारे में, जराइम के बारे में, इंसान का हुकूमत से राब्ते के बारे में, दूसरे मुल्कों के रवाबित के बारे में, दूसरे कौमों से रवाबित के बारे में, जंगो सुलह के बारे में जितने कवानीन पाए जाते हैं, क्या उनसे बेहतर कवानीन कुरान अजीम के अंदर मौजूद नहीं है? कुरान अजीम का इन कवानीन में के अंदर मौजूद, कुरान अजीम में इन कवानीन के अंदर मौजूद होना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि कुरान एक ऐसा जिंदा मौजज़ा है जो नाजिल तो 1400 साल पहले हुआ मगर हर जमाने के कानून की जरूरत को पेश पूरा कर रहा है, हर जमाने के कानून के तकाज़ों को पूरा कर रहा है। जब ऐसी किताब हमारे पास मौजूद है तो फिर मिर्ज़ाए कादियान की क्या जरूरत है, इस मुसैलमा कज़्ज़ाब की क्या जरूरत है, इस जालिम की क्या जरूरत है जो अपनी नबूवत की बुनियाद पर सरवरे कायनात के हिसारे नबूवत में शिगाफ डालना चाहता है, जो मिल्लत इस्लामिया को इंतशार की राह पे डाल रहा है, जो अंग्रेजों के खुद काश्ता पौधे की बुनियाद पर मिल्लत इस्लामिया की बुनियादों को मुसलसल तबाह कर रहा है। आप ये कह सकते हैं कि मुमकिन है तशरीह व ताबीर का मामला हो, कादियानी इसलिए आए हो कि वो नई तशरीहात और ताबीरात पेश करें। मैं अर्ज करना चाहता हूं रसूल पाक का एहसान अजीम है कि उन्होंने अपनी किताब जिंदगी और आईने हयात के लिए हमें तशरीह व ताबीर के सिलसिले में भी किसी और का दस्ते नगर नहीं बनाया, बल्कि खुद इरशाद फरमा दिया, तरक तो फीकुम मुस्तक़लैन किताब अल्लाह व सुन्नती, मैंने तुम में दो भारी भरकम चीजें छोड़ी हैं, अल्लाह की किताब छोड़ी है और अपनी सूरत छोड़ी है। जब तक सुन्नत छोड़ी है, जब तक तुम उस पर कायम रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे। पता चला कि सरवरे कायनात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निज़ाम जिंदगी दिया है, जो कुरान दिया है, उसकी तशरीह व ताबीर के लिए सरवरे कायनात की सुन्नत तैयबा है, उनका आईने हयात है, उनका निज़ाम जिंदगी है। हाँ, अगर फिक्र इंसानी कहीं खता खाएगी बाद में तो उसके लिए भी इंतजाम फरमा दिया गया। इन्नल्लाह यबअसु अला रासि कुल्लि मिअतिन मन युजद्दिदु लहा अम्र दीनहा, अगर कभी गुबार चढ़ जाएगा सुन्नत मुस्तफा पर, अगर कभी बदल दिए जाएंगे हालात, और अगर कभी किसी की तशरीह व ताबीर में ज़हन इंसानी ठोकर खाएगा तो हर सदी के आगाज में एक ऐसा इंसान जलवगर होगा जो रसूल पाक के निज़ाम जिंदगी की तजदीद कर देगा और उनके आईने हयात को पेश कर देगा। 14 सदियां इस बात की गवाह हैं कि ना वो मुजद्दिदीन कम हुए हैं बल्कि हर दौर मुजद्दिदीन आते रहे हैं और वो अपना पैगाम करते रहे हैं। आप कह सकते हो, कोई जालिम कह सकता है कि मिर्ज़ाए कादियान भी मुजद्दिद ही मान लो। मैं अर्ज करना चाहता हूं, ऐसे जालिम को मुजद्दिद बनवाना चाहते हो जिसने पहले कहा कि मैं उम्मती हूं, फिर कहा कि मैं मुजद्दिद हूं, फिर कहा मैं नबी गैर तशरीई हूं, फिर कहा मैं नबी तशरीई हूं, फिर कहा मैं रसूल हूं और फिर कहा मैं मोहम्मद अरबी से बढ़ करके हूं। माज़अल्लाह, जिसने अपनी जिंदगी में इतने झूठ बोले हो, अजी झूठ बोला ही ना हो, झूठ लिखा हो अपनी किताबों के अंदर, ऐसा झूठा
ऐसा झूठा और ऐसा मक्कार इंसान नबी हो सकता है? अजी नबी तो बहुत बड़ी बात है, शराफत के किसी खाने में नहीं रखा जा सकता, उसे आम इंसानी सतह पे नहीं रखा जा सकता, जो हर रोज अपना बयान बदलता हो, जो हर रोज अपनी फिक्र बदलता हो, जिसका आलम ये हो कि वो ये कहता हो कि मैंने अंग्रेज गवर्नमेंट की हाल से वफादारी का हल्फ उठा रखा है और मैं उसके तमाम तकाजों को पूरा करने के लिए मबूस किया गया हूं, जिसका तर्ज फिक्र ये हो कि 1857 के गदर के बाद या इनकलाब के बाद या जिहाद के बाद एक ऐसी तरह फिक्र डालना चाहता हो जिसकी बुनियाद पे हमेशा के लिए जिहाद का दरवाजा बंद कर दिया जाए। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि कुरान अजीम की कितनी आयत करीमा और सरवर कायनात की अहादीस मुबारका उनकी खत्म नबुव्वत के ऊपर दलालत करती हैं। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीन, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है बल्कि वो अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबीन हैं। मर्द के बाप होते तो शायद बेटा मुस्तकबिल में नबुव्वत का दावेदार न होता तो दुनिया नबी समझने लगती, नहीं ये दरवाजा ही बंद कर दिया गया। ए रसूल औलाद दी गई है ताकि आंखों को ठंडा कर ले, मगर उठा ली जाएगी ताकि नबुव्वत का दावा भी न किया जा सके आपके बाद। मन लौ कान बादी नबियन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते, मगर सुनो उमर तुम भी नबी नहीं हो सकते, इसलिए कि नबुव्वत का दरवाजा बंद कर दिया गया है। इमारत बनाने वाले ने इमारत बनाई, हदीस का मफहूम है, लोग उसके गिर्द गर्दिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कितनी हसीन इमारत है, मगर एक ईंट नहीं रखी गई है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैं अंबिया की इमारत की वो आखिरी ईंट हूं, उसके बाद दूसरी ईंट न रखी जाएगी, मैं खातमुन नबीन बना करके भेजा गया हूं। हुजूर रहमत आलम सरवरे कायनात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुझे इम्तियाज बख्शा गया है इस कायनात में कि मुझे आखिरी नबी बनाया गया। क्या वजह है कि और अंबिया किराम को इस इम्तियाज से नहीं नवाजा गया? सहाबा किराम तशरीफ फरमा हाजिर है बारगाह रिसालत में, आफ्ताब रिसालत जलवागर है, माहताब नबुव्वत जलवागर है, वह ज़ाते गिरामी जलवागर है जिसके कदम इज्जत से कायनात इंसानी की आबरू वाबस्ता है। सहाबा किराम हाजिर हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद फरमा रहे हैं ए लोगो सुनो, अल्लाह ने एक बहुत बड़ा इनाम अता फरमाया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज हमने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है तुम्हारे लिए, अपनी नेमतें तुम्हारे ऊपर तमाम कर दी हैं और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया है। सहाबे किराम मसरत इब्तिहाज के आलम में मुसलसल सुभान अल्लाह कर रहे हैं, खुशी का आलम है कि सहाबे किराम किताबनाक चेहरों से नुमाया है। मगर उसी महफिल में जनाब सिद्दीक अकबर हैं जिनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लोग कहते हैं सरकार ये तो खुशी का मकाम है, आज से पहले किसी नबी को ये इनाम नहीं बख्शा गया। एक माले कानून और एक माले इस्लाम का इनाम न आदम को बख्शा गया, न मूसा को बख्शा गया, न ईसा को बख्शा गया। ये पहला इनाम है जो रसूल पाक को अता फरमाया गया। आपको खुशी मनानी चाहिए, आपकी आंखों में आंसू कैसे हैं? उन्होंने इरशाद फरमाया हर पैगंबर नबी कानून लेकर के आता है, मेरे रसूल आखिरी पैगंबर हैं और उन्होंने दीन मुकम्मल फरमा दिया, अब उनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि वो जन्नते निगाह है हमारी निगाहों के लिए, वो खुल्दे नजारा है हमारी निगाहों के लिए, वो शहरे आरजू हैं, वो मरकज़े अकीदत हैं, वो जामे जाने तमन्ना है, वो क़िबला इताअत हैं, वो काबे इनक़ियाद है। जब वो कानून मुकम्मल हो गया तो रसूल पर्दा फरमा लेंगे, तो मैं कानून के मुकम्मल होने की खुशी है और मुझे रसूल के पर्दा फरमाने का गम है। वो जन्नते निगाह हमारी निगाहों से छुप जाएगी, वो खुल्दे नजारा न होगा जो हमारे लिए महवर नजारा और मरकज़ अकीदत है। सारा सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने इस हकीकत से इंकशाफ किया कि सहाबे किराम की आंखों में आंसू आ गए। रसूल गिरामी वक़ार ने देखा कि लोहा गर्म है, आपने इरशाद फरमाया है मेरे सहाबा क्या मेरे अल्लाह ने जो मुझे पैगाम दिया था वो मैंने तुम तक पहुंचा दिया? सहाबा ने कहा हाँ या रसूलल्लाह पहुंचा दिया। आपने कहा मैंने कोई कोताही तो नहीं की? सहाबा ने अर्ज़ की नहीं या रसूलल्लाह आपने कोई कोताही नहीं की, जैसे अभी आपसे गवाही ली गई है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे सहाबा तुम गवाह हो कि मैंने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, अल्लाह की अमानत पहुंचा दी। सहाबा ने कहा हम गवाह हैं। अल्लाह के रसूल ने अपनी उंगुश्ते शहादत उठाई और कहा ए परवरदिगार मेरे सहाबा गवाह हैं कि मैंने इनका पैगाम तेरा पैगाम इन तक पहुंचा दिया। ए अल्लाह मेरा ज़मीरे नबुव्वत गवाह है कि मैंने तेरा पैगाम इन तक पहुंचा दिया। ए अल्लाह तू भी गवाह हो जा कि मैंने तेरा पैगाम इन तक पहुंचा दिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये गवाही अपने सहाबा से क्यों ली? कुरान तो खुद गवाही दे रहा है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कुरान की गवाही के बाद इस दूसरी गवाही की क्या जरूरत है? मैं अर्ज करना चाहूंगा कि अल्लाह के रसूल का हर अमल
दावत के लिए होता था, आगाह करने के लिए होता था। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि ए मेरे सहाबा, अपने पर्दा फरमाने से पहले तुमसे पूछ रहा हूं कि मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचाया या नहीं पहुंचाया। तुम अपने बाद वालों से पूछ लेना कि तुमने उनका पैगाम पहुंचाया नहीं पहुंचाया, और वो अपने बाद वालों से पूछ लेंगे कि उन्होंने अल्लाह का पैगाम अपने बाद वालों तक पहुंचाया नहीं पहुंचाया। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो कयामत तक मेरी नबूवत जारी और सारी रहेगी, कयामत तक मेरा निजाम फैलता रहेगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये हमारे बुजुर्गों का एहसान है कि उन्होंने अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचाया रसूल पाक के वास्ते से। क्या आप ये पैगाम अपने बच्चों तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस सुन्नत तैयबा पे अमल करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी नस्ल तक रसूल पाक का निजाम मुंतकिल करने के लिए तैयार हैं? सरकार दो आलम का आईने करम मुंतकिल करने के लिए तैयार हैं? क्या आपका ज़मीर इस बात के लिए मुतमईन है कि मरने से पहले आप भी अपने बच्चे से पूछ सकते हैं कि गवाही दो कि मैंने रसूल का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया? अगर आप पूछ सकते हैं तो आप कामयाब हैं। अगर नहीं पूछ सकते तो कारपेट के चंद टुकड़ों पर और जिंदगी की चंद सहूलतों पर आपने अपना निजाम फिक्र बेच दिया है, आपने अपना निजाम गैरत बेच दिया है, आपने अपना तशख़्ख़ुस बेच दिया है, आपने अपना आइन बेच दिया है, आपने अपनी जिंदगी की आला तरीन अक़दार बेच दी है। सुनो, आपको नहीं बिकना चाहिए। बिका वो करता है जो पहले कभी बिक न चुका हो। हम तो बाजार मदीना में बिक चुके हैं, हमको तो रसूलुल्लाह ने खरीद लिया है। अब दुनिया की कोई ताकत हमें अब दुनिया की कोई ताकत हमें खरीद नहीं सकती। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। रसूल पाक के बाजार में बिक जाने का मतलब यह है कि हम अनमोल हैं, दुनिया की कोई ताकत हमें सौदा नहीं कर सकती। रसूल पाक की बख्शी हुई इसी फिक्र का यह आलम है कि अल्लाह के रसूल ने पर्दा फरमाया। सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु एक बैग तमाम हवादिसाते रोजगार का मुकाबला कर रहे हैं। मुसैलमा कज़्ज़ाब है जो उभर के सामने आ रहा है, असवद आनसी है जो अपनी नबूवत का दावा कर रहा है, एक औरत है जो नबूवत का ऐलान करती हुई नजर आ रही है, मानीन ज़कात है जो आंखें दिखा रहे हैं, फित्रों का एक अंबार है जो सामने आ रहा है। हजरत ओसामा का लश्कर खुद रसूल पाक ने तैयार कर दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तैयार किया हुआ लश्कर अभी रवाना नहीं हुआ है कि अल्लाह के रसूल ने पर्दा फरमाया। आपने जनाब सैयदना ओसामा को बुलाया, कहा ओसामा आप अपने लश्कर को लेकर के आगे बढ़िए ताकि सरकोबी की जा सके उन जालिमों की जो रसूल के निजाम जिंदगी से बगावत कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओसामा को बुलाया और रवाना करने का हुक्म दिया तो बात सहाबा है, या रसूल अल्लाह मुसैलमा कज़्ज़ाब हमलावर होना चाहता है, मानीने ज़कात की योरिशें बढ़ती जा रही हैं, हुजूर असवद आनसी भी निगाह लगाए हुए हैं। ऐसे मौके पे मदीने को आप खाली कर देंगे तो बताइए कहीं मदीने पे हमला ना हो जाए। तो अल्फाज है सिद्दीक अकबर को कि मदीने को तो मदीने वाला बचाएगा, लेकिन कसम खुदा की अगर मदीने की आबादी में बसने वाले इंसानों की रानों के गोश्त जंगल के जानवर ले जाएं तो भी मैं रसूलुल्लाह की नबूवत के खिलाफ उठने वाले से जिहाद करूंगा। यह नहीं हो सकता कि सरवरे कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस निजाम जिंदगी को मुकम्मल कर दिया है और कुरान पाक ने तायीद कर दी है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, उस निजाम जिंदगी और आईने हयात में कोई शब खू मारने पाए, कोई रात की तारीकी में उस निजाम हयात में घुसना चाहे और बातिल को दाखिल करना चाहे, ये किताब इलाही है। ला यातीहिल बातिलो, जिसके न दाएं से बातिल आ सकता है न बाएं से बातिल आ सकता है। ये मुकम्मल है किताब जिंदगी, ये मुकम्मल है आईने हयात, ये मुकम्मल है निजाम जिंदगी, ये मुकम्मल है दस्तूर हयात, और उसकी हिफाजत का जिम्मा खुद परवरदिगार आलम ने लिया है, खुदा वहदहु कुद्दूस ने लिया है। इसलिए सुनो, मैं मानीने ज़कात से भी जिहाद करूंगा और मैं मुसैलमा कज़्ज़ाब की भी सरकोबी करूंगा और मैं असवद अनसी में निपटूंगा। बैक्सवत 4 महाजों पर मैं फौज भेजूंगा। ओसामा अल्लाह के रास्ते के लिए रवाना हो जाओ। ओसामा को घोड़े पे सवार कर दिया गया, खुद पैदल चलने लगे। जनाब ओसामा तलब के बाहर आ गए और नीचे आ गए, सरकार ये कैसे हो सकता है कि रसूलुल्लाह का नाइब, रसूलुल्लाह के मुकद्दस मुसल्ले का वारिस जमीन पे चल रहा हो और मैं घोड़े पे सवार हो जाऊं। सरकार आप घोड़े पे सवार हो जाइए, मैं पैदल चलूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा, जहां से आप हमें विदा करेंगे मैं घोड़े पे सवार हो जाऊंगा। तो सिद्दीक अकबर की आंखों में आंसू आ गए, मेरे बेटे ओसामा, काश मैं इस काबिल होता कि तुम्हारी फौज का अदना सिपाही बन करके अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के लिए चलता। काश मेरा बूढ़ा जिस्म इस काबिल न होता कि
के दुश्मनों से लड़ सके तो इस काबिल तो होता कि दुश्मनों की रास्ते में गिरता और दुश्मन तुम तक मेरे बात पहुंचते, लेकिन अगर मैं इस काबिल नहीं हूं तो क्या तुम ये भी गवारा नहीं करते हो कि थोड़ी दूर मैं तुम्हारे साथ चलूं, तुम्हारे रास्ते की गर्द मेरे चेहरे पे लगे और कल ये गर्द मैदान क़यामत में गवाही दे रही हो कि अबू बकर भी उस काफिले के साथ थे जो काफिला जिंदगी की राहों में चिराग रोशन करने के लिए आगे बढ़ा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसे रसूल ने मीरे कारवा बनाया हो वो गर्दे कारवा बन के जिंदा रहना चाहता है। जब ये तर्ज जिंदगी होता है और ये जज्बा हरारत होती है तो दुनिया आगे बढ़ती है और इंसान कामयाब होता है। काश यही अंदाज़े जिंदगी हमें मिले, काश यही अंदाज़े हयात हमें मिले, काश यही तर्ज फिक्र हमें मिले। मैं अर्ज करना चाहता हूं, आज इर्तिदाद के सैकड़ों माहौल हैं, इनकार हदीस भी इर्तिदाद है, वहाबियत भी खुला हुआ इर्तिदाद है, रसूल पाक की गुस्ताखी भी खुला हुआ इर्तिदाद है, मिर्जायत भी खुला हुआ इर्तिदाद है। और इतने इर्तिदादों में घूमने के बाद भी हमारा ज़मीर चीख रहा है रिद्दतुल्लाह अबू बकर लहा। यह ऐसा इर्तिदाद है कि जिसके लिए कोई अबू बकर नहीं है, जिसके लिए कोई इस्लामी जिंदगी नहीं, इस्लामी निज़ाम हयात नहीं है, जिसके लिए कोई ताकत हमारे पास नहीं, मगर हमारा ईमान हमारी ताकत है, हमारा जज्बा हमारी ताकत है, हमारी कुव्वत फैसला हमारी ताकत है, हमारा अमल हमारी ताकत है, हमारी हरकत मुसलसल हमारी ताकत है, हमारी सही पहम हमारी ताकत है। अगर हम अपने ज़मीर की रोशनी में रसूलुल्लाह के सहारे दुनिया के फितनों के लिए कदम उठाएं तो तरह हमारा कदम दुनिया के फितनों के कुचलने के लिए तैयार काफी है। इसलिए मुसलमानों घबराओ नहीं, हौसला ना हारो। ये फितने वक्तन फौक्तन पैदा होते रहते हैं, मगर हर दौर में फितनों को मौत आई है। ये फितने कभी इख्तिदार के साए में परवान चढ़ते हैं, कभी तागूत के साए में परवान चढ़ते हैं, कभी शहंशाहियत के साए में परवान चढ़ते हैं। ये मुतज़लियों का फितना है, ये जबरियों का फितना है, ये कदरियों का फितना है, ये खल्क़े कुरान का फितना है, या और दूसरे फितने हैं। बादशाह सरपरस्ती कर रहे हैं, इख्तिदार सरपरस्ती कर रहा है, इसलिए कि बादशाह को खुशामद चाहिए। हक कभी खुशामद नहीं करता, बातिल हमेशा खुशामद करता है। इसलिए बादशाहों के दरबार में हमेशा बातिल पलता रहा है, बातिल परवान चढ़ता रहा है। मगर जैसे ही बादशाह का इख्तिदार जाहिर हुआ, बातिल भी फना हो जाता है। आज भी कुछ फितने दूसरों के पैसों पे पल रहे हैं, घबराओ नहीं, वो वक्त आएगा कि हक गालिब होगा और बातिल फना हो जाएगा। बादशाहों की ताकत की बुनियाद पे पलने वाले फितने कभी कामयाब नहीं होते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज अगर हम मिर्जाइयत का एहतसाब कर रहे हैं, आज अगर हम कादियानियत के बारे में बोल रहे हैं, तो उनको कैसे फरामोश कर दिया जाए जिन्होंने कादियानियत को खुशामदेद कहा है, कादियानियत के लिए राहें फराहम की हैं। अगर नबूवत मुस्तफ़ा के बाद कोई और नबी आ जाए तो इससे खातमियत मुस्तफ़ा में फर्क नहीं आता। ये वो जुमला है जो देवबंद की चार दीवारी से बोला गया है और जिसकी बुनियाद पे कादियानियों ने इक़दाम किया है। जिस तरह से कादियानी मौजब गर्दन ज़दनी है, उसी तरह से वो इंसान भी है जिसने इस जुमले को सामने रख करके मुस्तफ़ा के मफ़हूम खातमुन नबीयीन की इजमाइयत का इनकार किया है। हर कुरान पाक का एक इजमाई मफ़हूम है। मैंने बताया ना, यह लोगत किसी और मुनकिर हैं और इजमा के मुनकिर की फिर कहा गया है और काफिर कहा जाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कभी आपने सोचा कि खत्म नबुव्वत का यह ऐलान क्यों किया गया है? क्या जरूरत थी कि एक दीवाना कादियान की वादी से उठता है और अपने नबी को नबी कह देता है? महज इसलिए और सिर्फ इसलिए कि उस दीवाने के पीछे सलीबियों की बहुत बड़ी ताकत है। सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने टूट जाने वाली तलवार, हजरत तारिक के सामने शिकस्त खा जाने वाले लोग और दूसरे फातिहीन के सामने शिकस्त खुर्दा लोगों ने अपना मैदान जंग बदल दिया, अपने आलाते जंग बदल दिए। पहले वो तलवारों से सामने आए थे मगर अपनी लाशों के अंबार छोड़ के वापस गए। उन्होंने सोचा कि अब हम तलवारों से नहीं, अफकार से हमला करेंगे, नजरियात से हमला करेंगे, हम वो तलवार छीन लेंगे जो मुसलमानों के हाथ में है। चुनांचे उन्होंने वक्तन फवक्तन ऐसे अफराद को तैयार करने की कोशिश की, ऐसे अफराद को आमादा करने की कोशिश की जिन्होंने जिहाद का इनकार किया। कादियानी ने सबसे भी बाद में जिहाद का इनकार किया और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया जिहाद मनसूख हो गया है। मैं इसलिए आया हूं कि जिहाद मनसूख कर दूं, मैं इसलिए आया हूं कि जिहाद मनसूख कर दूं। जालिम इसलिए आया है कि एक कौम की गैरत छीन ले, एक कौम की आबरू छीन ले, एक कौम का विकार छीन ले, एक कौम की खुदी छीन ले, एक कौम का तशख्खुस छीन ले, एक कौम का ईमान छीन ले, एक कौम की हरारत छीन ले, एक कौम का जज्बा मोहब्बत छीन ले, एक कौम का आईने वफा छीन ले। इसलिए पैदा हुआ है ये, इसलिए इसे दुनिया में भेजा गया है मरदूद को कि वो इस तरह की बात करे। दरअसल उसकी पैदाइश का मकसद ये था कि मुसलमान जज्बा जिहाद में सरशार होता
ہے تو بیک وقت یورپ کی وادیاں بھی لرزتی ہیں اور ایشیا کا جگر بھی کانپتا ہے. یہ جذبہ جہاد ہی چھین لیا جائے, مسلمان ایک بے لاش مردہ ہو جائے, ایک لاش بن جائے گا, ایک بے جان لاشا ہو جائے گا, پھر مسلمانوں کو فنا کرنا آسان ہوگا, مسلمانوں کو مٹانا آسان ہوگا, مسلمانوں کو تباہ کرنا آسان ہوگا, مسلمانوں کو برباد کرنا آسان ہوگا. اس لیے اس نے جہاد کے خلاف بات کی, انگریز گورنمنٹ کی وفاداری کا کلمہ پڑھتا رہا, اپنی تمام تحریروں میں ملکہ برطانیہ کو باضابطہ خراج احترام پیش کرتا رہا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھتے آئے ہیں کہ جب ایک نبی آتا ہے تو دوسرے نبی کی بساط عمل سمیٹ دی جاتی ہے. حضرت موسیٰ آئے تو ان کے پہلے والے انبیاء کرام کی کتاب سمیٹ دی گئی. حضرت عیسیٰ آئے تو بعد کی کتابیں سمیٹ دی گئیں اور ان کا نظام ٹوٹ گیا, ان کے نظام سے لوگ الگ ہو گئے. جو نبی آتا ہے وہی مرکز محبت ہوتا ہے, جو نبی آتا ہے وہی مرکز عقیدت ہوتا ہے, اور انبیاء کرام کا احترام بجا, مگر عمل تو نئے نبی پہ کیا جاتا ہے. اس بدبخت نے اپنی نبوت کا اس لیے اعلان کیا کہ ہمارا رشتہ سرکار مصطفیٰ سے توڑ دے, ہمارا رشتہ مکین گنبد خضرا سے توڑ دے, ہمارا رشتہ سرور کائنات کی بارگاہ سے توڑ دے, ہمارا رشتہ انیس بےکسا کے آستانے سے توڑ دے, ہمارا رشتہ چارہ ساد درمندہ سے توڑ دے, ہمارا رشتہ اس ذات گرامی سے توڑ دے جس سے رشتہ توڑنے کے لیے ہم اپنی لاشوں کے انبار پر بھی تیار نہیں ہیں. وہ رشتہ اپنی نبوت کے ذریعے سے توڑ دے. جب نیا نبی آئے گا تو پرانے نبی سے رشتہ یوں ہی ٹوٹ جائے گا, معاذ اللہ. یہ بدبختی اس لیے ہے کہ دنیا نے ہماری محبت اور ہماری محنت اور ہماری عظمت کا محور پہچان لیا ہے, نقطہ انتہا پہچان لیا ہے. اس نے یہ جان لیا ہے کہ رسول پاک کی محبت ان دیوانوں کو شعلہ بجا کر دیتی ہے, ان دیوانوں کو آگوں پہ کودنے آمادہ کر دیتی ہے, ان دیواروں کو کوہ پیمائی پہ آمادہ کرتی ہے, ان دیوانوں کو سمندروں میں کودنے پہ آمادہ کر دیتی ہے. یہ رسول پاک کی محبت ہے جو ہمیں طارق ابن زیاد کی صورت میں یہاں لائی, جو محمد ابن قاسم کی صورت میں سندھ کی وادیوں میں لے گئی, جو خالد بن ولید کی صورت میں شام اور یمن کے مرکزی مقامات پہ لے گئی. یہ محبت رسول ہے جو ناقابل شکست ہے. اس وفد نے کیا جا کے بیان دیا تھا جو مدینے میں رسول کی بارگاہ میں آیا تھا, دیکھنے کے لیے کتنی فوج ہے, دیکھنے کے لیے کتنی طاقت ہے, دیکھنے کے لیے کتنے اسلحے ہیں, مگر یہاں فوج ہے نہ طاقت ہے نہ اسلحے ہیں. کچھ فاقہ زدہ جسم ہیں جو رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہیں. حضور وضو کر رہے ہیں, وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرتا کہ چہروں پہ مل لیا جاتا ہے, آنکھوں میں لگا لیا جاتا ہے. جانے والا جا کر کے واپس کرتا جاتا ہے اور کہتا ہے خبردار اے کافرو, ان سے مت لڑنا, کامیاب نہیں ہو سکتے. میں نے یمن بھی دیکھا ہے اور روم بھی دیکھا ہے, میں نے کسرا کا دربار بھی دیکھا اور قیصر کا آستانہ بھی دیکھا ہے, مگر میں نے وہ محبت جو رسول کے دیوانوں میں پائی ہے وہ کہیں نہیں پائی. یہ جب تک اقتدار پہ ہوتے ہیں احترام ہوتا ہے, جہاں اقتدار سے اتار دیے جاتے ہیں ٹھوکروں میں ڈال دیے جاتے ہیں, مگر جو قوم رسول کا پانی زمین پہ نہیں گرتے ہوئے دیکھ سکتی وہ رسول کا خون بہتے ہوئے کیسے دیکھ سکے گی. اس لیے سنو, جنگ فرزانوں سے کی جاتی ہے, جنگ دیوانوں سے نہیں کی جاتی. رسول نے دیوانگان محبت کی انجمن سجائی ہے, ان سے جنگ نہ کی جائے گی. دیوانگان عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ, کبھی کبھی گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے, گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی. دنیا کا دیوانہ چلا کرتا ہے تو راستہ بھول جایا کرتا ہے, مگر رسول اللہ کا دیوانہ چلا کرتا ہے تو جہاں بیٹھ جاتا ہے منزل بن جایا کرتی ہے, جن راہوں سے گزر جاتا ہے وہ راہیں شاہراہ حیات بن جایا کرتی ہیں. اس لیے سنو, یہ رسول اللہ کے دیوانے ہیں, ان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے. یہی دیوانگی قادیانی ہم سے چھیننا چاہتا ہے, یہی دیوانگی مسیلمہ کذاب ہم سے چھیننا چاہتا ہے, یہی دیوانگی ہمارے دلوں سے نکالنا چاہتا ہے. مگر سنو, ہم دیوانے ہیں اور دیوانوں کا اعلان بھی دنیا کے ہر قانون سے بلند ہوتا ہے. ہم اپنے قدموں کی ٹھوکروں سے ہر قادیانی کا سینہ دبا کر کے حضرت صدیق کی سنت ادا کریں گے. یہ ہمارا فیصلہ ہے اور ہم اس میں زندہ رہیں گے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے نہ صرف یہ کہ قرآن پاک کے تحفظ کا ذمہ لیا, بلکہ بالواسطہ سیرت مصطفیٰ کا بھی, قانون مصطفیٰ کا بھی اور حدیث مصطفیٰ کا بھی. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اعلی اختلاف روایات, جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ کا کردار کیا ہے. وہ فرماتی ہیں کیا تم نے قرآن عظیم کا مطالعہ نہیں کیا؟ اگر تم نے قرآن عظیم کا مطالعہ کیا ہوگا تو الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک ہر آیت کریمہ پہ تمہیں تصویر کردار مصطفیٰ ابھرتی نظر آئے گی, تصویر اخلاق مصطفیٰ ابھرتی نظر آئے گی. کانا خلقہ القرآن, ان کا خلق تو قرآن ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں ان کا خلق قرآن ہے اور خدا کہتا ہے میں قرآن کی حفاظت کرنے والا ہوں.
پتہ چلا سیرت مصطفیٰ کی حفاظت اسی لیے ہو رہی ہے کہ اس کا ذمہ بھی پروردگار عالم نے لیا ہے، اس کا ذمہ بھی خدا وحید القدوس نے لیا ہے۔ چنانچہ اگر قرآن پاک کو محفوظ کرنے والے حفاظ القرآن ہیں تو حدیث کو محفوظ کرنے والے حفاظ الحدیث کے نام سے یاد کرنے پائے جاتے ہیں۔ یہ دونوں جماعتیں 1400 سال سے مسلسل چلی آ رہی ہیں اور قیامت تک چلی آئے گی۔ اور کس طرح سے محفوظ کر لیا ہے حضور کی حدیث کو؟ رسول بیٹھے ہیں تو پکار اٹھے، فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کھڑے ہوئے تو پکار اٹھے، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول نے تبسم فرمایا تو پکار اٹھے، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول نے دیکھا تو پکار اٹھے، فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول نے ہاتھ اٹھایا تو پکار اٹھے، فرفع الید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کی ہر ادا کو محفوظ کر لیا گیا۔ ان کی خلوتیں بھی محفوظ ہیں، ان کی جلوتیں بھی محفوظ ہیں۔ جن نبیوں کے بعد نبی آتے رہے کیا ان کی زندگیاں بھی محفوظ ہیں؟ اگر نہیں تو نبی کی ضرورت تھی، مگر اب نہیں، اس لیے کہ رسول کا ہر قدم محفوظ رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔